हाय नमस्ते नमस्ते फ्रेंड्स। एवरीवन। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं ओंटारियो लीज की। वी आर गोना शेयर हाउ वी वर लुकिंग फॉर अ लीज, फॉर अ हाउस टू लीज, एंड what are the processes and what you should be taking care of when you are looking for a place to rent in Ontario We specifically. just rented this place before like 3 months ago, so we just want you guys to know our journey throughout the process, and we also gonna inform you how the Ontario lease works for tenant and landlord both. So yeah. So the first thing is when you come to Canada as an immigrant, अगर आप आते हो, even if you are coming as a student or as a permanent resident, you do need a place to live, right? So most of us would rent a place. Initially, many of us had suggested that many people have suggested us that you should go for Airbnb. Now, when we came here, we came in March 2020. There was COVID, so all Airbnbs were out of function. There was no Airbnb available. Thankfully, Airbnb was not our first plan. We had our family here, so we lived with them, and then we were deciding to rent a place, right? So yeah, the first हम लोगों ने बहुत सारे हाउसेस देखे, kijiji पर बहुत सारे लिस्टिंग्स देखे, फिर हम लोगों ने मार्केट प्लेस फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत सारे लिस्टिंग्स देखे, another कई सारे रियल एस्टेट सेल्स पर्सन के साथ बात Zolo की। था. So there are many websites which will give you properties for rent and auction, and you can see everything online. आप सब देख सकते हो online. So the first thing is, now you have to make sure कि आपको क्या चाहिए. So even for us to decide on what we need, it took us like a few days कि हमें पता चले कि हमें ये चाहिए. So once you decide कि मुझे इतने बेडरूम का चाहिए, मुझे पार्किंग स्पेस इतनी चाहिए, बाथरूम कितने चाहिए आपको? बाथरूम कितने? For us it was we needed at least 2 bathrooms. So yeah, so that is something that you have to keep in mind. For me it was like I needed a stove जिसमें fire actually होता है, not a conduction stove top, but again that didn't happen. So yeah, don't go into too many specifics. Some things won't happen, but make sure that आपके you दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, उस right? हिसाब से आप वो फिल्टर कर पाओगे आपके हाउसेस। Yeah, and again, many people have when we were looking for houses to rent, many people suggested that you should go for a basement apartment, okay, and that is a good option. Again, we were not looking for that, so that's a different story. But many students, many immigrants initially decide to live in a basement apartment because Indians, especially Gujaratis, are smart people. We won't be renting a place for too long. We'll be buying a house soon. Indians will be buying a house soon. So people think like if you live in a basement, you can save up the money, save up for the down payment and get your house sooner. So that's a good idea too. So first thing first, know your preferences. आपको क्या चाहिए, आपकी पार्किंग स्पेसेस, बाथरूम की कितने बेडरूम्स चाहिए, रिक्वायरमेंट, आपको अगर पास में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या नहीं चाहिए, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सेकेंड अगेन कि आप जब भी एज ए इमिग्रेंट आते हो इस कंट्री में, तो यूजुअली इंडियंस की मेंटालिटीज ऐसी रहती है कि लैंडलॉर्ड है तो उसकी ज़्यादा पावर चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आप इक्वली पार्टीज़ हो दोनों पार्टीज़ में कि जो भी बातचीत हो रही है उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको बता सकते हो, और जो भी है वो अग्रीमेंट के थ्रू जा रहा है, तो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहा है। वो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा एटीट्यूड ही रखना है कि आपको कुछ भी डाउट हो तो पहले से ही क्लियर कर दो, क्योंकि बाद में वो सारी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको आपको ही फेस करना रहेगा। तो हम बात करते हैं ओंटारियो लीज। सो ओंटारियो में देयर इज अ स्टैंडर्ड लीज, राइट? एक स्टैंडर्ड लीज सिस्टम है और उसी के हिसाब से सारी लीजेस बनती है. सो आप जब लीज साइन करोगे, यू विल साइन अ स्टैंडर्ड लीज, एंड इफ़ देयर आर एडिशनल कंडीशंस जैसे कि नो स्मोकिंग और नो यूज़ ऑफ कैनबिस एंड स्टफ लाइक दैट, तो उसके लिए स्केड्यूल ए एक अलग से फॉर्म होगा जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी और आप और आपका लैंडलॉर्ड दोनों साइन करेंगे, राइट? सो what we wanted you to figure out is कि schedule A जो होता है, जो अलग से आप फॉर्म साइन, शेड्यूल ए में लैंडलॉर्ड कुछ भी लिख सकता है, उसको जो भी अपनी प्रॉपर्टी पे चाहिए या नहीं चाहिए वो सारा इंक्लूड कर सकता है। पर अगेन शेड्यूल ए स्टैंडर्ड लीज के सामने वैलिड नहीं है। जो भी कुछ स्टैंडर्ड लीज में लिखा हुआ है वो ही अल्टीमेटली वैलिड रहेगा।
क्योंकि वो ओंटारियो ने बनाया हुआ है। हाँ, तो क्योंकि लाइक एक क्लॉज है, जैसे कि स्टैंडर्ड लीज में है कि 24 आवर बिफोर लैंडलॉर्ड शुड गिव यू अ रिटर्न नोटिस बिफोर कमिंग टू द हाउस। सो ऐसा स्टैंडर्ड लीज में लिखा हुआ है, पर कई सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि उस दिन आप सिर्फ बता दोगे फ़ोन पे या मैसेज पे तो वो चलता है, बट ऐसा नहीं रहता है। जो स्टैंडर्ड लीज में लिखा है वही फॉलो करना रहेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। या एंड बहुत बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से नहीं होती है. इट्स नॉट एवरी टाइम दिल गिव यू 24 आवर नोटिस, बट अगेन इट इज़ इफ़ यू वांट इट देन, बट द रूल इज़ देयर. अगर आपको रूल के से फॉलो करना है तो आप कर सकते हो. द अदर थिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ कि ये स्टैंडर्डाइज लीज जो होती है उसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, जैसे कि हॉट वाटर टैंक होती है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा. वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है. सो यूजुअली लैंडलॉर्ड रेंट हाँ. करते हैं ये हॉट वाटर टैंक, तो उसका रेंटल चार्जेस हर महीने रहता है अराउंड $40-50. $35 to $50 या Depending सो on the- वो रेंट कौन पे करेगा वो आपको देखना है, क्योंकि मोस्टली लीज में लिखा हुआ रहता है कि वो टेनेंट पे करेंगे या लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है. तो जो आपके लीज में नहीं लिखा हुआ है कि कौन पे करेगा, तो उसका मतलब है कि लैंडलॉर्ड को ही पे करना रहेगा, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा. कई सारे लैंडलॉर्ड ऐसे बोलते हैं कि यूजुअली टेनेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसिडर अंडर द यूटिलिटीज. नो, इट कंसिडर अंडर द वाइटल सप्लाईज. सो वो सारे वाइटल सप्लाईज आपके लैंडलॉर्ड को मेंटेन करने पड़ेंगे, उसका रेंट उसको ही देना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस यू साइन कि आप वो पे करोगे. तो वो आपको पहले से देख लेना है. Yes, and so yeah, that is Ontario lease. We want to make sure that आप Ontario lease ठीक से पढ़ो. Schedule A में जो भी लिखा है, जैसे कि अगर Schedule A में वो लिखते हैं कि no pets allowed in the house, okay. But Ontario lease में it says that there is no restriction as such. तो Schedule A का Ontario lease ओवर रूल कर देता है और वो पॉइंट नहीं वैलिड गिनाता है. पर अगर आप कॉन्डो में रह रहे हो तो कॉन्डो के कुछ रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, देन यू कांट हैव पेट्स. सो these minor specifications are there. Now everyone is, you know, हम सब एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड होते हैं मोस्टली अगर आप इमिग्रेट कर रहे हो तो प्लीज़ गो टू द लीज. कुछ भी डाउट हो बिफोर साइनिंग आस्क द रियल्टर, इफ आई मीन रियल एस्टेट एजेंट, इफ़ यू आर वर्किंग विद. को लीगली हेल्प की ज़रूरत है तो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड है यहाँ पे, तो उस पर फ़ोन करके आप पूछ सकते हो. उसका कुछ वेटिंग टाइम 5 या 10 मिनट है, तो वो लोग आपको सारे आंसर्स करेंगे. तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आपको डरना नहीं है. आप आपके लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे हो उसकी प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए, तो उनकी वो ड्यूटीज़ रहती है कि आपको वो सारे जो सारे मशीन्स है कि जो भी है बेसिकली दे आर सपोज टू प्रोवाइड यू विद अ गुड वर्किंग रेफ्रिजरेटर, स्टव, heating system, cooling system not sure everywhere, but heating system for sure. Again they also specify कि स्टाफ देना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में है. सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो आपको देंगे. एंड देन यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द रेगुलर क्लीनलीनेस. अगर साफ़ सफाई जो रखनी है वो आपको करेंगे. अगर कोई मेजर डैमेज होता है या डैमेज आपसे होता है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें, ये अप्लाइंसेस पुराने भी होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी कि ये अभी काम नहीं कर रहा, तो देन इट इज़ द लैंडलॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॉक टू देम. सो आवर कंसर्न इज़ जस्ट दैट वो मेंटालिटी से मत जाए कि कोई आपके कोई फेवर कर रहा है. इट इज़ योर राइट, सो एक्सरसाइज योर राइट्स एंड ऑल्सो फॉलो योर ड्यूटीज़. आप अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करो और आपकी जो राइट्स है उसे एंजॉय करो. और एक बात कि अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर आपका देसी ओनर हो या कोई भी ओनर हो कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, तो आप सारी डिटेल्स उसको ईमेल में सेंड करें, क्योंकि ईमेल वो लीगल फॉर्मेट रहता है कि जो आप कोई भी डिस्प्यूट हो तो आप दिखा सकते हो लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में या किसी भी जगह पे. अगर आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें कंसिडर नहीं हो रही है. तो ये ध्यान रखना है कि आपको सारा ईमेल में मेंशन करके अपने लैंडलॉर्ड को सेंड करना है. या क्योंकि कनाडा में हमारे साथ ये नहीं हुआ था, पर हमारी एक फ्रेंड के साथ यूएस में हुआ था कि शी टोल्ड द लैंडलॉर्ड दैट शी इज़ गोइंग टू, उसकी फिक्स टर्म लीज थी, मीनिंग उसने कहा था कि मैं 12 महीने रुकूंगी, पर उसके पहले उसे मूव करने का उसको मूव करना था. तो उसने उसे नोटिस दी, बिकॉज 90 डेज़ का पीरियड के बाद अगर आप लीव करना चाहो, आप छोड़ना चाहो घर, तो आप कर सकते हो. उसने नोटिस दी, पर उसने नोटिस मैसेज पे दी. उसने कह दिया कि वो इंडियन ओनर जो था वो इंडियन था, तो इसने मैसेज पे कह दिया कि मैं 3 महीने के बाद चली जाऊँगी. पर ओनर ने कहा हाँ ठीक है, ओनर ने हाँ कहा.
उसके बाद 3 So महीने both के parties agree on that term, हाँ but 3 महीने के बाद ओनर ने सीधा उसके हमारे फ्रेंड के ऊपर लेटर भेजा कि आपको ये 3 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे को लीगल नोटिस नहीं दी। और अकॉर्डिंग टू द लीज जब भी वो टेनेंट ईमेल करता है तो वो लीगल नोटिस कंसिडर होती है, टेक्स्ट मैसेज नहीं होता है तो उसको अल्टीमेटली वो रेंट पे करना पड़ा। उसकी डिपॉजिट तो- भी आई डोंट थिंक उसको वापस मिली थी। या तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। और कुछ भी चाहिए तो लीगल एडवाइस लेना ज़रूरी रहता है और वो सारी Free में फ्री मिलती है। मिलती है यहाँ पे, तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन कुछ करके भी पूछ डाउट लो। है आप कॉल करो, आप पूछ लो कि मेरे राइट्स क्या है, ये सिचुएशन है तो मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। और या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? That's it. Pretty much. Yeah, so that's it. So yeah, our concern is just that you exercise your rights. क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो डर जाते हैं इजीली, बट जस्ट आप जो भी साइन कर रहे हो ठीक से पढ़ो, आपके भी इक्वल राइट्स होते हैं। और एन्जॉय योर डे वेयर यू लिविंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye bye.